creation of the Constitution, their appointments, their terms and conditions, everything is regulated by Constitution itself. The second set of the codes also mentioned in, remember that even you are mentioned in, all subordinate codes are mentioned in the Constitution. Articles 175 says there shall be one Supreme Court, a High Court for each province and Islamabad Capital Territory, and such other courts as are created or established by law. So all courts have their source in the Constitution itself. It's not that you are not mentioned in the Constitution everywhere. There are other mentions also, like Section 2, Article 202 and 203, where subordinate courts are subservient or they are supervised by the High Court. Judiciary, subordinate judiciary on the civil side is being created in Punjab, at least all over the Pakistan also, by a West Pakistan law. That is, you are well aware that West Pakistan Civil Codes Ordinance 1962. That creates law, but it creates court, that law creates courts. But creation of courts by itself will not be enough. Because just because there is a court, it cannot do anything. Then comes the most important part, the jurisdiction. Because Article 175, and this is something जो सिर्फ पाकिस्तान में, मैंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन इस सिलसिले में देखे हैं, लेकिन ये लाइन सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 175 a complete ouster of jurisdiction. Complete ouster of jurisdiction. Article 175(2) says, no court shall have jurisdiction save as is or may be conferred on it by Constitution or under the law. ये चीज दुनिया इंडिया में है, ना किसी और कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ प्रिजम्पशन कि जब कोर्ट क्रिएट होती है तो जुरिस्डिक्शन अपने साथ लेकर आती है। नहीं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट आर्टिकल 175(1) के तहत क्रिएट होती हैं या उसके अंडर लॉ के जरिए क्रिएट होती हैं। जुरिस्डिक्शन के लिए आपको एक सेपरेट अथॉरिटी चाहिए। और वो अथॉरिटी आपको डिफरेंट लॉज देते हैं। आप लोग सारे जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, इसका क्रिएशन 1962 के लॉ के तहत हो गई। जुरिस्डिक्शन आप कहां से लेंगे टू डिसाइड सिविल केसेस? दैट्स द आंसर। एक सवाई एक्सेप्ट सेक्शन 7 ऑफ सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के पास को jurisdiction वेस्ट की गई थी इन ऑल सिविल कोड, बट सिविल कोड्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की jurisdiction सेक्शन 9 से आती है। सेक्शन 9 में इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, एंड मैं पढ़ देता हूँ उसमें से, अब उसके बाद मैं आऊंगा कि उसमें इंटरेस्ट वाली बात क्या है। द कोर्ट्स शैल have jurisdiction to try all suits of civil nature। इसने आपको jurisdiction दे दी कि हर civil suit depending upon either civil court or district additional district judge or district judge हर किस्म का civil suit सुन सकता है। It is the provision under which jurisdiction was given bestowed upon all subordinate judiciary civil side. But immediately back there is another clause
it is interesting because on the one hand it is giving the jurisdiction, साथ ही वो jurisdiction exclude भी कर रहा है कुछ situations. आगे कहता है accepting suits of which their cognizance is either expressly or implied bar. So there it's a jurisdiction ousting clause. ये either expressly bar होगा या impliedly bar. ये इसका amendment आ गई impliedly वाला वो हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया. expressly bar लेकिन वो impliedly bar बावजूद निकालने के वो रहेगा वहीं का वहीं. तो उसका रीजन मैं अभी आपको आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आउस्टर्स होते किस किस्म के हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरह डिस्पाइट दिस क्लॉज खुद ब खुद बार हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको अभी. टिल मिड 70s सिविल कोर्ट्स के पास तकरीबन सिविल कोर्ट्स और सिविल जो नॉर्मल प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की सिविल जुरिस्डिक्शन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हों या सिविल कोर्ट्स हों, उनके पास तकरीबन हर किस्म की जुरिस्डिक्शन, इवन बैंकिंग केसेस उनके पास जाते हैं. फिर 1979 में पहला लॉ आया जिसने बैंकिंग कोर्ट्स एस्टेब्लिश की. रिकवरी ऑफ लोन्स ऑर्डिनेंस आया 1979 का, जिसने प्रूव करना शुरू कर दिया. इसी तरह ऑलमोस्ट तकरीबन सारे सिविल सब्जेक्ट सिविल कोर्ट्स की हैंडल करते. मिड 70 के बाद एक ट्रेंड चला, और ये पाकिस्तान में नहीं, ये सारी दुनिया में ये ट्रेंड चला है. 10-15 साल ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन चला के जी सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन आज तक आउट करके स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स को दे दी. टैक्स एक एक्सेप्शन थी जिसमें ये था कि टैक्सेस के केस पहले भी अपने खराकी में चलते थे 1922 से, और वो चल रहे. कुछ मुल्कों में आज भी टैक्स में ये एक्सेप्शन नहीं. फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में जो टैक्स कलेक्टर होता है वो सिर्फ डिटरमिन लायबिलिटी करता है, उसके बाद वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाता है रिकवरी करने के लिए, सूट फाइल करते हैं. स्टेट भी सूट फाइल करती है कि जी मैंने ये टैक्स लेना है, इसको वो करें. वहाँ तो खैर एक और भी चीज़ है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी लॉ जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ मैटर्स किसी लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है. अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी नॉर्मल सिविल कोर्ट की डिटरमिन है. वो पावर आपके पास है. सिंध हाई कोर्ट वो पावर एक्सरसाइज भी करती है अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन. सूट में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिक्लेयर भी करती है. लेटेस्ट एग्जांपल है DIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉ जो था वो 2015 का, वो अब तो सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हो गया, बट सिंध हाई कोर्ट में सिंगल जज ने इन अ सूट, नॉर्मल सिविल सूट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. और सिंध हाई कोर्ट की पावर्स जो हैं वो वही हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज की हैं, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट. हमारे एडिशनल सेशन जज साहब की ज़्यादा पावर है जुरिस्डिक्शन वाइज. तो सिंध हाई कोर्ट की वो लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने एक्सरसाइज की, तो ये पावर बिफोर ये जो आर्टिकल 199 या उससे पहले आर्टिकल 98 आया था, उससे पहले या उससे पहले डेट ऑफ 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट जजेस या सिविल जजेस के पास भी और आज भी हैं. कोर्ट ऑफ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन के पास आज भी ये पावर है. हम एक्सरसाइज नहीं करते. हमारा एक ट्रेंड डेवलप हो गया है, उसको सुपीरियर जुडिशरी ने भी ले लिया कि ये पावर हमारे पास है सिर्फ, बट लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर आप लोगों के पास नहीं है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. आपके पास एक केस आता है, मतलब एक पार्टी डिफेंस केस करती है कि जिस लॉ पे रिलाय करके ये सूट फाइल किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अब आपके सामने दो लॉ हैं, एक नॉर्मल लॉ जिसके तहत वो सूट आया हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन. आप मेरा ख्याल है उसको आप नहीं टच करेंगे, यदि आप हाई कोर्ट से जाके उसको देखो. शायद 50-60 साल पहले
वो कोर्ट दोनों को एग्जामिन करती और वो अगर देखती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो कहती कि ये लॉ में, ये नहीं कहती कि वो लॉ वॉइड है या गलत है, वो ये कहती कि मेरे पास दो चॉइसेस थी कि मैंने लॉ दो में से एक लॉ इंप्लीमेंट करना, तो मैं किसको इंप्लीमेंट करूँ? सुपीरियर लॉ। सो वो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करती है और दूसरे लॉ को इग्नोर करती है। आउस्टर्स जो हैं कई किस्म के हो सकते हैं। एक आउस्टर है कि उस लॉ ने या किसी और लॉ ने jurisdiction in respect of that subject matter, any subject matter, banking, insurance, has been given to another forum, a particularly specialized court or tribunal. In banking cases, Section 7 says that exclusive jurisdiction in respect of suits and offences under this law shall be with banking code. Now there is no mention, अभी इन्होंने कहा कि there is no mention कि implied नहीं होगा. अब when you write exclusive jurisdiction, you are not saying कि civil court's jurisdiction is ousted, but by giving exclusive jurisdiction, you are ousting it. So implied ouster will always be there. Because there is a concept of implied repeal, that law, a previous law gives authority to court A, B, C, but later law gave it to court B, and thereby impliedly repealed the earlier law. So impliedly, by saying that exclusive jurisdiction rests in A, B, C, is taking away the jurisdiction from the civil courts. अब ये जो alternate forum, जैसे मैं alternate forum ouster कहता हूँ, वो भी दो तरह होते हैं. या तो आप लिखते हैं कि no court shall have jurisdiction. उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस का सेक्शन 27 है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का 122 है, और दोनों में ये लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट द ट्राइब्यूनल और द बैंकिंग कोर्ट. और देयर में भी एन बाय एक्सक्लूसिव, जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल कोर्ट की, बाय एक्सक्लूसिव आप लिखते नहीं हो कि नो कोर्ट, बट आप एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन देने से ही निकाल देते हो. ये FIO के सेक्शन 7 में है, और बहुत सारे और लॉज में इस तरह की प्रोविजंस हैं कि व्हेन यू गिव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन एंड देन टेक अवे. सेकंड, जो आउस्टर नॉर्मली आता है वो आता है जिसे मैं सब्जेक्ट मैटर आउस्टर कहता हूँ. उसके दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ऑलरेडी बता, एक गुड फेथ आउस्टर है जो आपको बहुत सारे टैक्स लॉज और बहुत सारे और लॉज में नजर आएगा कि एनीथिंग टेकन इन गुड फेथ बाय XYZ will not be called in question in any civil court or any other proceedings. It is not a complete bar, but it is a good faith ouster. If the act is done in good faith, then the courts will not take cognizance. Now, this kind of ouster is hardly being applied. I think subordinate judiciary में तो या lower judiciary में तो ये अभी भी apply कर रहा होगा, लेकिन High Court और Supreme Court में आप बहुत कम की ouster है. Because अगर कोई illegality है तो it's a malice in law, it is not in good faith. Every illegality is presumed to be not in good faith, and so the courts interfere. मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ.
आर्टिकल 73 में एक है कि अगर स्पीकर सर्टिफिकेट दे देगा ऑन अ बिल कि इट इज अ मनी बिल, देन नो कोर्ट विल क्वेश्चन. But since 2009, the law has developed that if it's illegal, it's bella fide or without jurisdiction, so even with this certificate, the courts can examine and courts have examined. 2009 में they struck down when the judges of the High Court and the Supreme Court number were extended. They struck it down that it cannot come through money bill. Later National Bank के केस में GIDC was struck down earlier round में Supreme Court ने इस तरह and number of examples. Supreme Court ने 1997 में इसको बहुत हद तक एग्जामिन किया कि क्या कंडीशन होगी जहां हम इंटरफेयर कर सकते हैं. उसमें यह है कि बार विल नॉट अप्लाई, बार विल टू अप्लाई दिस ouster there will be one कि tribunal validity constituted हो. Second, the order passed or the action taken is not tainted with mala fide. The order or action taken was such that it can be passed under that law. मतलब अगर order उस law के तहत pass नहीं हो सकता तो good faith exception will not apply and ouster will not apply. नंबर डी जो चौथी चीज उन्होंने कहा, principle of natural justice are being followed without that much. So these four are conditions. अगर इनमें से एक भी missing होगी तो court will assume jurisdiction despite the party. एक तो ये गुड फेथ एक्सेप्शन, एक देयर इज अनदर एक्सेप्शन, इसी का एक शेड है कह रहे हैं, इसी का एक ऐड कर लें. कुछ चीजें लॉ ने कंप्लीट बाहर ही कर दी क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कोर्ट्स में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, टैक्स मैटर में अब ये प्रिज्यूम हो चुका है या कि सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. हाई कोर्ट 199 में छेड़ सकती है लेकिन सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन नहीं. पंजाब की, सिंध में बेटू, सिंध हाई कोर्ट, लेकिन वो किस हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट डू इंटरफेयर इन टैक्स मैटर नॉर्मली. इट्स समथिंग विच इज नॉर्मल इन सिंध हाई कोर्ट. जो पंजाब में हम समझते हैं कि कुछ नहीं, सिंध हाई कोर्ट में नॉर्मल है कि आप टैक्स मैटर में चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, सारों में इंटरफेयर करती है सिंध हाई कोर्ट. डिस्पाइट द फैक्ट कि इन चारों लॉज में जो टैक्स लॉज हैं देयर इज एन आउस्टर क्लॉज, और आउस्टर क्लॉज कैटेगोरिकली सिर्फ गुड फेथ को प्रोटेक्ट ही करती. इट ऑल्सो सेज दैट कोई असेसमेंट, कोई टैक्स मैटर नहीं कोर्ट्स में जाए, बट दे इंटरफेयर. हमारे यहाँ ये नहीं है. हमारे यहाँ 199 ज़्यादा यूज होता है और शायद आई थिंक ट्रेडिशन या कन्वेंशन में बात जाता है कि इस तरह फंक्शन. चौथा जो है, तीसरा जो है आउस्टर क्लॉज का वो है कि इट्स नॉट अ कंप्लीट आउस्टर. अगर किसी ज्यूरिसडिक्शन के एक्सरसाइज के लिए कोई प्री कंडीशन लगाई गई है बाय लॉ तो, और वो प्री कंडीशन फॉलो नहीं की गई तो then the court will not interfere, will dismiss it for lack of, although it may not say the lack of jurisdiction, but it will be dismissing it for lack of jurisdiction. For example, CPC में कुछ जगह I think section 91, 92 है, उनमें रिक्वायरमेंट है एडवोकेट जनरल की अप्रूवल का इन केसेस ऑफ मैटर ऑफ ट्रस्ट और पब्लिक. अगर नहीं अप्रूवल दी then the court will reject it for want of jurisdiction, because one of the conditions
because jurisdiction is dependent upon certain conditions in this case, and one of the conditions has not been fulfilled. So, in this case, there is not a complete ouster of jurisdiction, but the conditions for exercise of jurisdiction has not been fulfilled. This is the basic framework of jurisdiction. Jurisdiction होती क्या है? एक सवाल है, आप में से कोई भी जवाब. What is jurisdiction? Power to decide in case. Here, this any list before any list, any issue before. These components. Jurisdiction आपको पता है कई किस्म की हो सकती है. The most important is subject matter jurisdiction. This probably शायद section 9 से हम निकालते हैं, and then pituitary and territorial. Territorial जो है एक स्पेशल jurisdiction, जैसे हम carve out करते हैं jurisdiction and give it to किसी और. जो territorial jurisdiction है ये सबसे ये वो है जिससे आप इन सब केसेस इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन आपका इमीडिएटली आना चाहिए. अगर इमीडिएट ऑब्जेक्शन नहीं आया और ट्रायल हो गया है तो फिर कंसेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन इस पे अप्लाई करता है. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन पे कोई कंसेशन नहीं है. पार्टी कंसीड कर भी दे फिर भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं आए. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो है और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑल्सो वो लॉ से ही आएगी, लॉ से ही ली जाएगी एक दफा देखी. बिकॉज मैंने पढ़ा था आर्टिकल 175(2) क्या कहता है? नो कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय और अंडर अ लॉ. So it will only come through law and it can only be taken away through. आप अग्रीमेंट के जरिए कोर्ट से या लीगल प्रोसीडिंग्स को नहीं निकाल सकते. मैं कमर्शियल कोर्ट्स पे आ रहा हूँ क्योंकि कमर्शियल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक ये मिसनॉमर या गलत नाम है कमर्शियल कोर्ट्स. बिकॉज अभी तक आगे जाके शायद ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक उसकी रीजन ये है कि देखें ना, कोर्ट की क्रिएशन उसको स्पेशलाइज्ड जुरिस्डिक्शन देना कैन ओनली बी थ्रू अ लॉ. अभी तक लॉ फील्ड में नहीं. यस, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का में जो इंस्ट्रक्शंस हैं टू द सिविल कोर्ट्स, उनमें एक कॉन्सेप्ट है और जो बहुत पुराना है 50 से है, कमर्शियल केसेस का. उसमें कमर्शियल केसेस को ब्रॉडली डिफाइन भी किया गया है कि, लेकिन वो इस हद तक है कि किसी केस को आप कमर्शियल केस ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स उसमें लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. उसमें कुछ हैं जो आप शायद रेलेवेंट नहीं रहेगी, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जो अब रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उनके स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल क्रिएट हो गए हैं. बट उनको आप कमर्शियल कोर्ट डिक्लेयर करेंगे और उनको एक्सपेडिशियसली डिसाइड करेंगे. इस पे अमल शायद नहीं होगा. अब उस पे हम आप लोगों के जरिए शायद हाई कोर्ट अमल करवाने जा रहे हैं. It is an ordinary court, but हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ऑर्डिनरी कोर्ट को, आई थिंक वो ऑर्डिनरी कोर्ट को स्पेशल तो नहीं कहना चाहिए, एक खास किस्म का काम माफ करे और उस खास किस्म के काम के अलावा शायद बाकी काम उनको ना दिए जाए बिकॉज उस खास किस्म के काम की नॉलेज कुछ. ये पावर हाई कोर्ट के पास सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के तहत की है, आर्टिकल 202 के तहत बने हुए रूल्स के तहत भी है, और 203 की सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन.
एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं कह सकते। यहाँ मैं थोड़ा सा मैं आऊंगा आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। जहां जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन आता है ना, वहां कोर्ट दो डिसीजन ले सकती है। जब आपके पास एक केस पेश होता है बैंकिंग का, आप दो ले सकते हैं, या आप क्लेम रिजेक्ट कर देंगे कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, या आप क्लेम रिटर्न कर देंगे टू बी टेकन टू अस। अब आप कमर्शियल कोर्ट में लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एक कॉमन चीज बनी हुई है वर्ड्स कमर्शियल कोर्ट। बट सिविल कोर्ट से मुराद में मैं सिविल कोर्ट नहीं कर रहा, मैं तीनों किस्म की सिविल कोर्ट शामिल कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की और सिविल कोर्ट की। जब मैं सिविल कोर्ट का वर्ड यूज करूंगा अनलेस वो यहाँ उसमें थी, अगर सिविल कोर्ट के पास कोई केस पेश होता है, कमर्शियल कोर्ट के पास एक केस पेश होता है, बीइंग कमर्शियल कोर्ट के, ये कमर्शियल केस है, इसको आप डिसाइड करें। आप रूल 10 जो है पार्ट के का जो रूल 10 है ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उससे गुजरते हैं, आप उसके सारे क्लेम का जायजा लेते हैं और आप फील करते हैं कि ये केस इस स्कोप में नहीं आता, इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ अ कमर्शियल केस, क्योंकि आप लोगों को एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन के तहत कमर्शियल केसेस को डिसाइड किया। बढ़ानी पड़ेगी हमारी 5 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके तो 5-5 हज़ार के प्रोजेक्ट्स हों, वो भी जाहिर है वो बहुत सारी चीजें करनी होंगी। ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके तहत आपको बहुत सारे लॉज भी अमेंड करने पड़ेंगे टू ब्रिंग इट टू लाइन। आप ट्रांसफर कर देंगे, रेफरेंस बनाएंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे, आप क्लेम रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि जुरिस्डिक्शन आपके पास है। आप अपने खास काम की वजह से आप उस केस को एज अ पॉलिसी सुन नहीं सकते। ट्रांसफर करें, अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन होना तो आप या रिजेक्ट करेंगे या रिटर्न करेंगे। यहाँ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपके पास जुरिस्डिक्शन है, आप सिर्फ एज अ पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हाई कोर्ट आप उस किस्म का काम नहीं कर रहे, और आप उस किस्म के काम के लिए खास जज मुकर्रर है जो ऑर्डिनरी जज अगर है और आपका काम खास किस्म का है तो आप ऑर्डिनरी जज के पास हैं जो नॉर्मली जो ये देखें आज के सब्जेक्ट से जो मेरा है ना, एक गलतफहमी ये पैदा हो सकती थी कि जी ये जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन है, ये जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन नहीं है। आपके पास जुरिस्डिक्शन हर केस को सुनने की है सिविल केस, एक्सेप्ट फॉर द काउंसिल। अगर विद इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट है फिर तो उसमें रेफरेंस बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का है या फिर सब्जेक्ट मैटर वो तो रिटर्न होगा ना, वो तो जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन है ना, वो वहां पे जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी है ना कि ठीक है अगर वो टेरिटोरियल का है तो रिटर्न हो जाएगा, अगर इन केस के सब्जेक्ट मैटर रिस्ट्रिक्शन वो देखें वहां पे तो सब्जेक्ट मैटर देखें, मैंने अभी कहा कि हर चीज पूरी जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल भी, सब्जेक्ट मैटर भी, पेक्यूलियर, बट सब्जेक्ट कमर्शियल केसेस में नहीं आता तो फिर ये अप्लाई करेगा और आप ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर जुरिस्डिक्शन लैक करती है फिर तो आप आइदर रिजेक्ट करेंगे या नॉर्मली रिटर्न करेंगे कि आप प्रॉपर, या अगर फॉर एग्जांपल बैंकिंग केस, अब आप कमर्शियल केसेस ले लें, मैं कमर्शियल केस को ये एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास एक बैंकिंग का रिकवरी सूट है, इट्स अ कमर्शियल केस डेफिनेशन के मुताबिक, लेकिन सिंस जब से ये रूल 10 बना था उस वक्त से देयर इज अ चेंज, एंड दैट चेंज इज दैट
banking courts established होगी and matters relating to finance and recovery will only go, they have under section 7 of FIO 2008, they have the jurisdiction to try, exclusive jurisdiction. So यहाँ केस में आप claim reject कर देंगे कि go to banking court. यहाँ पे ये इशू नहीं है कि ठीक है ये कमर्शियल केस की ब्रॉड डेफिनेशन में आता है, वहाँ पे बैंकिंग लिखा भी हुआ, लेकिन बिकॉज अब इसके लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्ट बन चुकी है जिसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, यू विल रिटर्न द प्लेन बिकॉज आपके पास है इवन एज जज डीलिंग विद कमर्शियल केसेस. अब मैं ये वो टर्म यूज कर रहा हूँ जो एक्चुअली होनी चाहिए, जज डीलिंग विद कमर्शियल केसेस भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. एक्चुअली सर सीपीसी में आर्टिकल 212 की एनालॉजी पे कोई अमेंडमेंट आनी चाहिए. आर्टिकल 212 में जब हम जाते हैं ना हाई कोर्ट वो जाते हैं कहते हैं नहीं सारी जाए आप ट्रिब्यूनल में जाए, तो इसका एक्चुअली सीपीसी में सीपीसी को सीपीसी जिस वक्त ये बनी थी वो बहुत एडवांस थी. अब हम शायद उस तरह चले नहीं उसके साथ, हम इसको शुरू कर दिए. अब हाईकोर्ट ने बहुत हद तक इसमें हाईकोर्ट ने भी की, गवर्नमेंट ने भी अमेंडमेंट की, एक पूरा वो किया कि किस तरह हो सकता है, लेकिन अब हाईकोर्ट की भी शायद अमेंडमेंट तैयार है मेरी खबर के मुताबिक, वो हो जाएंगी तो शायद आई थिंक सीपीसी बहुत हद तक उसमें एक जो लॉज आते हैं शुरू में प्रीएम्बल उसका अमेंडमेंट का सामान उसमें कहा कि स्पेसिफाइड नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वो शुरू में अप्लाई भी करना शुरू कर दिया. डेयर एक्ट में भी वो 11A आ गई और वो करार देना शुरू कर दी कि ये देखें आप 711 के ऊपर, लेकिन जब उसके ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे है नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट. नोटिफिकेशन का जब हाईकोर्ट से पता करते हैं तो मतलब मेरा नहीं था कोई नहीं है नोटिफिकेशन, मेरे इल्म के मुताबिक नो नोटिफिकेशन अभी, लेकिन बहरहाल अगर नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो लेकिन चूंकि एक्ट में जो पहली अमेंडमेंट भी थी ना उसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है शामिल, लेकिन पूरे पंजाब में वो मयूरी खान ने लिखा शैल बी वो हो जाता है एक्चुअली. वो omit हो मैं जाए. आपको एक किस्सा सुना देता हूँ छोटा सा, ये क्या गलतियाँ होती हैं हमारे यहाँ. बाद में लॉ ऐसे भी अप्लाई हो होते हैं और बड़े सीरियस अप्लाई होते हैं. मैं नॉर्मली क्रिमिनल केस नहीं करता, लेकिन जानने वाले का क्रिमिनल केस था, ये शुरू की प्रैक्टिस की बात थी. इसकी अभी आपको याद होगा कि जो 1990 में एक लॉ आया था जिसके जरिए जो इलीगल आर्म्स आ रखे हैं इनकी सजा बढ़ा के 14 साल. खैर वो अपील आई, मैंने देखना शुरू किया तो क्रिमिनल का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. खैर वो सिविल में होता ये कि आप जरा किसी में ज़्यादा जा रहे होते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को भी. उस लॉ में लिखा हुआ था कि दिस लॉ विल कम इनटू फील्ड व्हेन इट इज नॉट विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. अच्छा खैर मैंने जो रिसर्च की नोटिफिकेशन नहीं मिला, वो अपील फाइल कर दी. पॉइंट ये भी दिया कि जी ये लॉ तो इस फील्ड में नहीं है, तो मुझे तो 14 साल आपने सजा दे दी. खैर वो उस जमाने में प्रोसिक्यूटर जनरल का महकमा नहीं होता था, एडवोकेट जनरल की क्रिमिनल केसेस करता. तो जज के लिए रेज किया तो, और इसके तहत कमाल ये हो रहा था कि ना सिर्फ सजाएं हो रही थी बल्कि हाईकोर्ट से अपवर्ड भी हो रही थी. जी ऐसे ही वो जब हुआ तो बुला के पूछा इस वक्त जो भी एडवोकेट जनरल से काजी साहब, वो उनसे बुला के पूछा. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मैं चेक करके बताता हूँ 2 दिन बाद. 2 दिन बाद जब वो चेक करके उन्होंने बताया कहते जी लोग अपील भी नहीं था. उस वक्त राशिद अजीज साहब जज थे और साथ मुनीर अहमद खान साहब, साथ डीबी थी, ये क्रिमिनल की डीबी है, दोनों. राशिद अजीज साहब ने कहा you mean to say that we are upholding the conviction under a law which is not even in field, and ये होता रहा है. So ये आपको भी छोटी सी बात करें यहाँ पे क्रिमिनल केसेस. मैंने तो आपको बताया ना कि सर वहाँ लिखा हुआ शैल बी ओमिटेड है ही नहीं अभी, वो जो पुरानी है सारी सीपीसी में भी ऐड हो गई है, इम्प्लीमेंट भी हो गई. पंजाब में वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ नोटिफिकेशन हुआ था, 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट है. अच्छा सर जनाब एक्सपीरियंस हम थोड़ी सी बात करें कि जनाब के ख्याल के मुताबिक किस तरह के केसेस हमारे पास आएंगे.
ये बता दें। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आप देखें बैंकिंग और इंश्योरेंस केसेस रिकवरी के वो आपके पास नहीं चल सकते बिकॉज उनकी जुरिस्डिक्शन अपनी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले आपके पास थे, अब उन्होंने अपना ट्राइब्यूनल बना दिया है। तो स्पेशल ट्राइब्यूनल बहुत लंबे अरसे तक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस वर डीलिंग विद IT मैटर्स सारे, लेकिन आप उन्होंने भी अपने ट्राइब्यूनल उन्होंने 2002 का शायद हुआ है उसके तहत बन गए, वो तो एक्सक्लूजन है। जो केसेस आ सकते हैं वो सिर्फ पार्टनरशिप की कंपनीज भी आ सकती हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में 68 का केस है जिसमें कंपनी का हर केस कंपनीज ऑर्डिनेंस का केस नहीं है। मेरे पास चल रहा है कंपनी ने लैंड के लिए किया हुआ लैंड का डिस्प्यूट है। लैंड का डिस्प्यूट है, लेकिन मसला है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट में आपको बता देता हूँ आप किस किस्म का केस। फॉर एग्जांपल एक डिस्प्यूट किया आ जाता है, देखें कंपनी की जो कंपनी एक्ट के जो केसेस हैं ना वो केसेस हैं जहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड ना होना हो और डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ मतलब एक होता है कि नॉर्मल हल्का सा डिस्प्यूट हो या डॉक्यूमेंट्स पे फैसला हो सकता हो। There are cases जिसमें complicated questions of fact शामिल। For example, sale of shares का dispute है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने शेयर्स खरीदे हैं, आप एक्स आदमी से मैंने शेयर खरीदे हैं, इस एग्रीमेंट के तहत खरीदे हैं, वो आदमी डिनाई कर रहा है कि मेरा ये कंपनी मैटर नहीं, ये सिविल डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट कमर्शियल है, ये आपके पास आएगा और आपने डिसाइड भी करना। नहीं आपका मानना इसके अलावा सर जब बैंकिंग सर हो गया, इंटेलेक्चुअल को वापस नहीं आएंगे, कंज्यूमर के नहीं आएंगे, कंज्यूमर कोर्ट के छोटे केसेस नहीं आएंगे। हाँ, देयर मे बी कंज्यूमर केसेस जो इंटरसी कंपनीज बड़े डिस्प्यूट, लेकिन ना एक कंज्यूमर कोर्ट का एक बड़ा छोटा सा डिस्प्यूट है कि मैंने क्रेडिट लिया, मैंने ये लिया। कंज्यूमर कोर्ट इसके लिए अगर एक आदमी ये ट्रांजैक्शन करता है कि मैंने तुम्हारे से 1 लाख खरीद लिए हैं और उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया है, वो आपके पास ही है, बिकॉज दैट इज अ डिस्प्यूट दैट इज बिटवीन मर्चेंट्स। बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, यहाँ पे दो मर्चेंट्स आपस में कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे से आपसे 1 लाख खरीद लिए जो मैंने आगे बेचे, आपने वक्त पे किया। ये कंज्यूमर का इशू ही नहीं है, कंज्यूमर नहीं है ये LCs लेटर ऑफ गारंटीज, और ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है बिकॉज स्पेशली जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, वहाँ बहुत बड़ा इशू होता है कि गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म में गारंटीज देती है, मोबिलाइजेशन एडवांस ले लिया और उसके अगेंस्ट गारंटी दिया और उसके अगेंस्ट गारंटी ले ली कि आपने इतने अर्से में कंप्लीट करना है या परफॉर्मेंस देनी है, उसकी गारंटी की वैल्यू होती है, वो डिस्प्यूट होता है, उसमें स्टेज भी बहुत होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी है कि उसमें स्टे नहीं होने चाहिए। लेकिन डिस्प्यूट LC लेकिन वो भी आप पूरा नहीं ये कह सकते कि हर केस को आपने रिजेक्ट कर देना, स्टे नहीं देना, पूरा गारंटी इज टू बी गवर्न्ड बाय इट्स ओन टर्म्स। वो आपने गारंटी पढ़ के फैसला करना है कि इसमें इस पे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं प्रोसीड करना चाहिए। LCs के डिस्प्यूट हम शॉर्ट कहते हैं कि सिंपली इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जितने भी मैटर्स होंगे, especially a contract which is merchant to merchant, which is business related contract. एक होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, एक दो प्राइवेट पार्टी से मैंने अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए मकान लेना था, उसका डिस्प्यूट है, दैट इज अ प्योरली प्राइवेट। यस, बट फॉर एग्जांपल अ कंपनी इज गोइंग to purchase a land to establish a factory or a business place, yes. हाँ, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अभी मुझे नहीं पता आपने एक्ट देखा है, अब ड्राफ्ट अब देखा है या नहीं, उस पर बहुत काम होने वाला है, बिकॉज देखिए बहुत सारी चीजें सेंसिटिव इस लिहाज से होती हैं कि बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्रोविंशियल लॉ का मसला नहीं, प्रोविंशियल लॉ बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट कमर्शियल नेचर के फेडरल डोमेन में आते हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और भी बहुत सारे, वहाँ पे प्रोविंशियल लॉ यस फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन दे सकती है फेडरल लॉज पे, फेडरल लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी है,
लेकिन क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी फेडरल लॉ के बारे में सब्जेक्ट बना सकती है? सो ये गैस एंड यूटिलिटी का जो डिस्प्यूट होता है ये गैस की यूटिलिटी कोड देती है। अब हुआ कि ये आया तो सारे मेरे पास जब ट्रांसफर हो गया मैंने देखा कि जो ओनरशिप ऑफ मीटर का डिस्प्यूट था वो भी गैस यूटिलिटी कोड में आ गया। वाल फॉर्म हो गया तो लीगल एयर ने कहा मेरे नाम ट्रांसफर करें, मेरे नाम करें। अच्छा वो तो सिविल कोड की जो सिविल कोड देखें, एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दूं कि और ये ध्यान में होना चाहिए बिकॉज आप प्राइमरीली सिविल कोड के तौर पे हैं, इसलिए ये सिविल कोड्स आर कोड्स ऑफ प्लेनरी jurisdiction. You have the jurisdiction, exception is a special jurisdiction. So, or courts normally guard their jurisdiction jealously. तो अपनी jurisdiction, एक अच्छी कोर्ट अपनी jurisdiction छोड़ती नहीं है, सवाए कि बिल्कुल ही कैटेगोरिकली कोई पॉसिबिलिटी ना हो jurisdiction छोड़ने। ये एक याद रखें, ये फंडामेंटल, क्योंकि देखें एक रूल है कि एक्सेप्शन जो है वो हमेशा नैरोली कंस्ट्रू करता है। Exceptions क्या है? Exceptions क्या है? Exceptions are ouster है, nullified, lack of jurisdiction. For example, जिसने jurisdiction ली है उसके ऊपर lack of jurisdiction, उसके ऊपर jurisdiction ली नहीं और फिर फैसला किया, nullified, quorum non juris. हुआ ये वकील ने आप जो असिस्ट किया उसने कहा सर इस पर तैयार ही नहीं है ये डिस्ट्रिक्ट रेप्रेजेंटेशन को पिटीशन में रिव्यू यानी कि खत्म करने के आए इसके प्रॉपर रिव्यू दायर होना चाहिए था। रिव्यू में हमें भी सुनते हैं जो भी तो वाकई पिटीशन थी एक दरखास्त, मैंने उस पर कार्रवाई रोक दी जब अब इधर जो है वो डिस्ट्रिक्ट तो उसको लाइन नहीं करती तो हम प्रोवाइड ही करते। लीगल प्रोसीडिंग रोकी नहीं जा सकती तो गाड़ी इलीगल अगर इलीगल कर रहा है आपके पास जुरिस्डिक्शन है और यही 67 का एक केस है उसमें उन्होंने यही कहा है कि 68 का केस है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आउस्टर ऑफ सिविल कोड आसानी से लाइटली इन्फर नहीं करेगा। रिमेंबर आप प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट हैं, एक्सेप्शन में वो आप नैरोली पढ़ेंगे, रूल को नैरोली नहीं पढ़ेंगे। आपकी जुरिस्डिक्शन रूल है, स्पेशल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कोई भी स्पेशल कोर्ट है वो एक्सेप्शन है। सो लाइक एनी अदर एक्सेप्शन देयर जुरिस्डिक्शन विल बी लिमिटेड एंड नैरोली कंस्ट्रूड। Your jurisdiction will always be broadly construed. सर एक केस था उसमें ना पेट्रोल पंप का एक इशू इन्वॉल्व था, उसमें कुछ ये भी था कि पोल्यूशन भी हो रहा है वगैरह मौका पे लिहाज से अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसमें ग्रीन कोर्ट तक केस चला गया जो सीनियर सिविल जज डील कर रहे थे वहाँ सर जो ग्रीन कोर्ट को चला गया उन्होंने कुछ ऐसा डील किया फिर केसेस कुछ शफल हुए सर अब वहाँ से क्या ये जो केस है इस तरह का क्या वो कमर्शियल कोर्ट में चलेगा? लेकिन यहाँ इस केस में दो इश्यूज आपने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया कि एक उसका पोल्यूशन रिलेटेड इशू है, एक उसका नॉर्मल इशू है। वैसे तो मुझे समझ नहीं क्योंकि अब ये है कि प्राइमरी इशू कौन सा है वो डिटरमिन करेगा कि किसके पास है। अगर प्राइमरी इशू अगर पोल्यूशन का इशू सिर्फ उसको एक सपोर्टिव इशू दे रहा है तो वो उस कोर्ट में चलेगा जिसकी प्राइमरी जुरिस्डिक्शन या प्राइमरी जिसको मांग हो। लेकिन अब एक केस में बहुत सारे इशू हो सकते हैं, उनमें से एक और सर मेन इशू जो है ना पेट्रोल पंप है तो फिर वो तो फिर कमर्शियल कोर्ट का अब एक बहुत सारे इश्यूज में तो एक स्पेशल इशू है स्पेशल कोर्ट का जो भी कर सकते हैं वो फिर स्पेशल कोर्ट में जाएगा लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट है इस केस में अगर है तो वो अगर यहाँ आपका एक इसका नॉट जुरिस्डिक्शन इशू नहीं एक अरेंजमेंट का इशू है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट है स्पेशल जुरिस्डिक्शन आपकी भी हर केस में ऐसे होने चाहिए अनलेस एक्सक्लूडेड आपको सिर्फ एक स्पेशल टास्क दिया गया है। लेकिन अगर आप
आपके टास्क में फॉल करता है काम और साथ उसके एक ऐसा इशू है जैसे ग्रीन कोड का इशू है जो भी एक और सिविल कोर्ट ने सुनना है अगर वो अलग से इशू होता वो भी आप ही सुनेंगे तो आपके पास जुरिस्डिक्शन तो उसके ऊपर है जी ऑलरेडी है आप सिर्फ उसको इसलिए नहीं निकाल सकते कि जी ये इशू ग्रीन कोर्ट के पास जाना चाहिए वो ग्रीन कोर्ट की सिविल जज है सर ग्रीन कोर्ट सीनियर सिविल जज डील करे वो हमारी राष्ट्रीय वो इस बात नहीं, वो- सीरियस कर रहे हैं नहीं एक वो क्या किसी खास लॉ के तहत बने हुए हैं या सिर्फ वो इसी इस्लामी Environmental dress. इंतजामी वो इंतजामी हुक्म में थे। Notification है, नहीं वो देखे ना वो इंतजामी हुक्म का स्टेटस यही वाला है जो आपका स्टेटस है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जुरिस्डिक्शन कोई इंतजामी हुक्म नहीं है लेकिन अब ये केस कमर्शियल कोर्ट का ही ये अगर वो ब्रॉडर इशू कमर्शियल कोर्ट में फॉल करता है और साथ एक एनवायरमेंट का इशू उसके साथ अटैच हो रहा है तो आप सुन सकते हैं मेरे व्यू में कोई पाबंदी नहीं अनलेस नहीं सर, अगर उसकी डिटर्मिनेशन होनी है जुडिशियल उसकी डिटर्मिनेशन ऐसा क्वेश्चन है उसमें इन्वॉल्व वो कमर्शियल नेचर का देन डेफिनेटली कमर्शियल उसकी डिटर्मिनेशन अगर ब्रॉड लेकिन ब्रॉडर इशू क्या है मेन इशू अगर उसको मतलब डिटर्मिनेशन रिक्वायर मेन करता इशू हो अगर उसका कमर्शियल कोर्ट का है और साथ एलाइड इशू Determination और सिविल जज का इशू बन रहा है तो आप मेन इशू वाला अगर सिविल कोर्ट पे नॉर्मल सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रखता है तो वही सुने सर इसमें इनफैक्ट ये हुआ था कि इस केस में ना जो मुतल्लिका यहाँ का केस नहीं था जो मुतल्लिका सेशन जज साहब थे उन्होंने फिर हाई कोर्ट से ओपिनियन ली कि आप बता दें कि ये ग्रीन कोर्ट में चलाएं या जो है इसको दूसरी अदालत है उसमें चलाया जाए तो वो फिर हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन दी कि ये डिटर्मिनेशन भी सेशन जैसा पूरी करें तो जैसा आपने क्या किया कि उसको ग्रीन कोर्ट में स्पेसिफिकली ट्रांसफर किया कि ये ग्रीन कोर्ट में जाएगा नहीं वो तो फिर चले ट्रांसफर कर दिया ना वो तो एक इंतजामी अरेंजमेंट से ट्रांसफर कर दिया लेकिन जब आप बैठेंगे तो आप ट्रांसफर करने से जस्ट बिकॉज एक इशू 100 में से ग्रीन कोर्ट का है आप ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ग्रीन कोर्ट का केस देखिए ग्रीन कोर्ट का केस आप सुन सकते हैं आप एक जुरिस्डिक्शनल बार कोई नहीं ये आपको समझना पड़ेगा इंतजामी अरेंजमेंट और जुरिस्डिक्शनल बार दो डिफरेंट चीजें आप केस सिर्फ उस सूरत में नहीं सुन सकते कंप्लीटली अगर आप 10 चीजें सुन रहे हैं उनमें से एक इशू आप सिर्फ उस सूरत में रहते हैं कि अगर वो बैंकिंग कोर्ट की रिकवरी का केस आ रहा है वो यस आप नहीं सुन सकते लेकिन अगर पूरा इशू आप सुन सकते हैं और आप सिविल जज ही हैं तो फिर आप पूरा इशू सुन सकते हैं अगर एक इशू ऐसा है जो इंतजामी तौर पे किसी और को सर इंश्योरेंस तो ये सिविल साहब की होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर के तहत ये लॉ नहीं है कि ये साइबर क्राइम भी सारे सुन सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन है कि नहीं ये सिविल साहब की इंश्योरेंस में तो खैर अगर वो ट्राइब्यूनल स्पेशलाइज बना देते हैं लॉ में तो वो तो वही सुनेगा तो लॉ में लिखा हुआ है ये सिविल वो एक ठीक है ओवरलैप कर रहे हैं स्टैट्यूट के ऊपर एक स्टैट्यूट है उसके बाद मेरा स्टैट्यूट आ गया सेक्शन ओवरलैप कर रहे हैं वो तो लेटर स्टैट्यूट वो मैंने अभी इम्प्लाइड रिपील की बात की है कि फॉर एग्जांपल अगर दैट इज एन इम्प्लाइड रिपील का कॉन्सेप्ट या इम्प्लाइड आउटस्टर की जुरिस्डिक्शन है वो ये है कि अगर एक बात का स्टैट्यूट आता है और वो किसी कोर्ट को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वेस्ट करता है तो पहला स्टैट्यूट अगर वो जुरिस्डिक्शन रखता दे भी रहा था तो वो खत्म हो बिकॉज लेटर स्टैट्यूट विल ऑलवेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट हमारी है यूनिवर्सिटी कोर्ट जैसे ऐसे बता देंगे आसिफ साहब के हमारी सारी पोस्ट मौजूद है यूनिवर्सिटी बाद में अगर यूटिलिटीज डाल देते हैं तो ये बिल्कुल लेकिन अगर यूटिलिटीज नहीं डालते तो वो एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है लेकिन दो प्रिंसिपल वन special law will always prevail general law and later statute will prevail अगर later statute covering the same subject in identical subject will prevail these are the two principles ये सेविंग क्लॉज आप देखेंगे तो उसमें दे दिया होगा लेकिन नहीं भी दिया तो प्रिंसिपल चाहिए सर इसके अलावा सेक्शन 6 से क्या नाम है अफेक्ट ऑफ रिपीट वहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर कैसे देखिए वो 6 तो देखें 6 तो वैसे आप 6 की तरफ हम बार बार जाते हैं 6 की तरफ हमें जाना भी चाहिए वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 264
एग्जैक्टली सेक्शन 6 आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 1977 की जजमेंट है यूनाइटेड शुगर की, उसमें ये कहा भी है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं करता एक्सेप्ट सेक्शन 6, बिकॉज सेक्शन 6 आपने स्पेशली डाल दिया है आर्टिकल 264। एक और सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो बात भी की थी, जो सब्जेक्ट का हिस्सा है, आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय कॉन्ट्रैक्ट। यस आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय कॉन्ट्रैक्ट, Section 28 of Contract Act specifically bars, लेकिन there are two exceptions। एक Section 28 में खुद provided, that is arbitration। Basically arbitration तो ouster of jurisdiction होती ही नहीं है। सूट फाइल हो जाए तो आप उसको jurisdiction पे रिजेक्ट नहीं करते। अगर Section 34 के तहत अप्लाई कर एप्लीकेशन आ जाती है तो आप उसे रोक सकते हैं, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये अगर उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है सर, वो आते हैं तो हम देखते हैं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। then we will say that go to that arbitration। नहीं, देखें वो भी उस सूरत में कहेंगे जब अगली पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो ऑब्जेक्ट करेगी, बिकॉज अगर दूसरी पार्टी उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने आपकी जुरिस्डिक्शन कंसीड कर दी, बिकॉज आर्बिट्रेशन का समझें, आर्बिट्रेशन इज अ वॉलंटरी अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और अपना अरेंजमेंट पार्टीज चेंज भी कर सकती हैं बाय एक्सप्रेसली। ये अगर वो चेंज नहीं करती, लेकिन अगर वो एक्सप्रेस प्रोविजन क्लॉज इन द एग्रीमेंट कि मैटर जो भी डिस्प्यूट होगा आर्बिट्रेशन में अगर वो रहेगा, नहीं भी फिर बोथ द पार्टीज आर बाउंड टू दैट वेरी क्लॉज। वो एक पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती उसका, फिर अदर क्योंकि दे आर बाउंड ऑफ दैट वेरी, दे आर बाउंड। अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड भी है और दूसरी पार्टी, दिस इज व्हाई सेक्शन 34 सेज बिफोर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट, बिकॉज वंस आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी तो आपने इम्प्लाइडली कह दिया कि हम दोनों अग्री करते हैं कि हम इस क्लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। उनके पास तो ये जुरिस्डिक्शन है, वो पावर है ना कि जब तक वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करते, उनके पास ये पावर है ना कि वो उस एग्रीमेंट को अमेंड करके उस क्लॉज को निकाल दें। आपके आप नहीं, वो एक दफा एग्री कर लेते हैं आपकी जुरिस्डिक्शन से, दे एग्री। तो क्या सरकार आर्बिट्रेशन की जाती है कि अगर सभी आप ये इतने पैसे सर वो अगर दोनों पार्टी वो आप अगर वो दोनों पार्टी देखें, अगर एक पार्टी कहती है कि आगे सेक्शन 34 की एप्लीकेशन कर वो करती है और रिटन स्टेटमेंट फाइल किए बगैर, तो यस, तो आप बिकॉज अब वो एक पार्टी के एग्रीमेंट पुराना है और अब दोनों पार्टी उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर दोनों पार्टीज आगे रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देती है दूसरी पार्टी, तो इसका मतलब है उसने एग्री कर लिया कि ये खत्म कर दें आप सब। सर अगर एक चीज है कि अगर जो एग्रीमेंट है इनिशिएट है, लेकिन रिटन स्टेटमेंट भी आती है, रेट आ गई रिटन स्टेटमेंट आती है, लेकिन एग्रीमेंट इनिशियल भी वाइड है बेस 26 का 7 नहीं वो देखिए सर, वो आप पे वो सेक्शन 26(2) में लिखा हुआ क्लॉज ऑफ